میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایسے ہی عقیدے اور دین کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کو ہم معتزلہ کا فتنہ کہتے ہیں، اعتزال کا فتنہ۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے کی شروعات ابلیس سے ہوئی ہے۔ اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ ابلیس سے۔ اس فتنے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے حکم کے سامنے، اللہ کا حکم نبی کا حکم مان لینے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنی لاجک کا استعمال کرے، اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی ذہانت کا، دانشوری کا استعمال کرے۔ یہ عقیدے کے فتنوں میں سے خطرناک فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جس نے اپنی عقل کا استعمال کیا وہ ابلیس ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سب کو حکم تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں آگ سے ہونے کی وجہ سے مٹی سے اونچا درجہ رکھتا ہوں، میں اونچا ہوں۔ جب میں اونچا ہوں تو میں کسی پست کا نیچے کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنی عقل کا استعمال کر کے کہ میں اونچا ہوں، یہ مٹی نیچی ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے، شریعت کے حکم کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کا استعمال کرنا یہ فتنہ ہے، عقل پرستی کا فتنہ، اور اس کی شروعات ابلیس سے ہوئی ہے۔ افسوس یہ فتنہ زندگی کے دنیا کے ہر دور میں موجود رہا، اس دور کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ چونکہ ماضی کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، آپ کے سامنے دور حاضر کے جدید فتنوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس دور کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے لوگوں نے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کافر قرار دیا۔ کسی نے کہا گناہ کبیرہ جس نے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اب آدمی نے عقل کا استعمال کیا اور کہا کہ نہیں، جو آدمی گناہ کبیرہ کر لے، انسان جھوٹ بول دے کافر، انسان غیبت کر لے کافر، انسان سود کھا لے کافر، انسان رشوت کا لین دین کر لے کافر، انسان شراب پی لے کافر، انسان زناکاری کر لے کافر۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا عقل کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر لیا گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب جب کافر مان لیا تو پھر کفر کا حکم لگا کر کے ان کے جان کے پیچھے، ان کے خون کے پیچھے، ان کے مال کے پیچھے، ان کے آبرو کے پیچھے لگ گئے۔ عوام تو عوام، مسلمانوں کے عوام تو عوام، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، مسلمانوں کے حکمرانوں کے پیچھے بھی اسی طریقے سے پڑے، ان کی جان حلال، ان کا مال حلال، ان کی آبرو حلال، اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیا۔ یہ فتنہ اعتزال کا، خارجیت کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کہاں سے نکلا ہے؟ عقل پرستی کے ذریعے سے نکلا ہے۔ عقل پرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں عقل پرستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین میں قرآن و سنت کو اپنی عقل کی مدد سے سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اپنی عقل کو قرآن و سنت پر حاکم بنا دینا، عقل کو اوپر کر لینا، شریعت کو نیچے کر لینا، یہ کام لوگوں نے ماضی میں بھی کیا، دور حاضر میں بھی کیا، اور یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ آج بھی ہمارے بیچ میں چل رہا ہے۔ بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے مصنفین اور بڑے بڑے اوریٹرز نے یہ فتنہ امت کے اندر بڑی شد و مد کے ساتھ پھیلایا۔ اپنی عقل کے ذریعے سے دین کا فیصلہ، ایمان کا فیصلہ، عقیدے کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ کرنے کا کام آج کے دور میں لوگوں نے کیا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا اسی عقل پرستی کا فتنہ، اسی عقل پرستی کا فتنہ جس کو اعتدال کا فتنہ کہتے ہیں، جس کو خارجیت کا فتنہ کہتے ہیں، اسی فتنے کے نتیجے میں لوگوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا۔ جو سنت عقل پر نہیں بیٹھتی اس کو انکار کر دیا۔ کسی نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے ضرور فرمایا ہے کہ اگر مکھی کسی آدمی کے پینے کے سامان میں بیٹھ جائے
मक्खी किसी के शरबत में, किसी के पानी में, किसी के दूध में, चाय पर अगर बैठ जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे डुबो दो, उसे डुबो दो और उसके बाद निकाल करके फेंक दो, क्योंकि उसके एक पंख में बीमारी होती है और दूसरे पंख में इलाज और शिफा होती है। वो बीमारी वाला पंख डालती है और शिफा याबी वाला पंख बाहर रखती है। जब तुम उसे डुबा दोगे तो वो बीमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अब अकल के पुजारियों ने, अकल परस्तों ने कहा नहीं, ये बात हमारी अकल में नहीं बैठती है, ऐसे कैसे हो सकता है? इनकार कर दिया, इस हदीस का इनकार, और ऐसे ही बहुत सारी हदीसों का इनकार। किसी ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 बार कज़िबात, झूठ बोले हैं, यानी खिलाफे वाक़े बात कही है, तौरिया किया है, तारीज किया है। अब इस हदीस का बुखारी के अंदर होने के बावजूद भी इनकार कर दिया। मैं इस हदीस को नहीं मानता क्योंकि हदीस मेरी अकल पर फिट नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी हदीस को जिसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। मेरे भाइयों, अकल परस्ती के फितने की वजह से लोगों ने अल्लाह के नबी की हदीसों का इनकार कर दिया, चाहे बुखारी में हो चाहे मुस्लिम में हो। यही नहीं बल्कि कायदा बतला दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जरूर ऊंचे मकाम के हैं, लेकिन है तो इंसान होने की हैसियत से क्या गारंटी है कि उनसे सही बुखारी को जमा करने में गलती नहीं हुई होगी? उनसे भी गलती हो सकती है जैसे हमसे गलती हो सकती है। इस तरह की बात करके अपनी अकल की बुनियाद पर सही बुखारी का मकाम भी घटाने का काम किया। इसी अकल परस्ती के नतीजे में सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करने का भी काम किया गया। सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला, अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी, उनके हुकूमत पर आयब लगाना, उनकी खिलाफत पर ऐब लगाना, उनके ऊपर बहुत सारे ओछे इल्जामात लगाना, तारीख के हवाले देना, सही गलत की तफरीक के बगैर, मुस्तनद गैर मुस्तनद हवालों के बगैर इंसान उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर और उनकी अदालत पर, सिकाहत पर, अमानत पर उंगली उठाना, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और माफ करना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी। ऐसे ही मेरे भाइयों हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी, हजरत समुरा इब्न जुंदुब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी। इन सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां भी लोगों ने की, इनके खिलाफ बदजबानियां की, कलम चलाया, जबान इस्तेमाल करके इनके मकाम को उम्मत के अंदर घटाने का काम किया। ये सारा फितना कौन सा फितना है? यह अकल परस्ती का फितना है। यह फितना अरब में भी था, अजम में भी था, और यह फितना बड़ी तेजी के साथ फैला। आज भी लोग अपने अपने स्टेजों से, अपने अपने मंचों से बाज लोग सहाबे किराम की शानों में गुस्ताखियां करते हैं। कोई गासिब का नाम देता है, कोई हरीस और लालची का नाम देता है, कोई हुकूमत का गुलाम कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां करना आम सी बात है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे ही इस फितने के अंदर जैसा कि हमने अर्ज किया, अरब से लेकर के आजम तक बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं नाम ले लूं तो लंबा वक्त चला जाएगा, लंबी तफसीलात हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि आप फितनों से आगाह हो जाएं। मेरे भाइयों, अरब दुनिया के अंदर आपने सैयद कुतुब का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी किताब के अंदर खुल्लम खुल्ला इस बात का लिखा कि अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत तो ठीक थी, उमर बिन खत्ताब की खिलाफत भी ठीक थी, और जैसे अबू बकर उमर की खिलाफत थी, ये खिलाफत उनके बाद 12.5 साल तक नहीं रही। उसके बाद अली बिन अबी तालिब की खिलाफत का दौर आया तो फिर वो खिलाफत का सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन 12.5 साल तक उस्मान गनी की जो खिलाफत गुजरी है, इस खिलाफत में बड़ी कमजोरियां, बड़ा खलल पाया जाता था, बड़ी बेइत्तेदाली पाई जाती थी, बड़ी नाइंसाफी पाई जाती थी। इस तरह से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया। मेरे भाइयों, ऐसे ही किताब और सुन्नत और सलफियत का जो
रास्ता है, अहले हदीसियत का जो रास्ता है, इस रास्ते को अकल परस्ती के रास्ते से मिक्स करने का एक फितना उसी अरब दुनिया से पैदा हुआ था। मोहम्मद सुरूर नाइफ ज़ैनुल आबिदीन नामी शख्स के जरिए से उसने ये फितना दुनिया के अंदर फैलाया, और इसके जरिए से बहुत सारे किताब और सुन्नत और सहाबे किराम के रास्ते पर चलने वाले बहुत सारे लोग वरगलाने में आ गए, बहकाने में आ गए, और बहुत सारे फितनों फसाद की नजर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला आज भी इनके जरासीम खवास में आवाम के अंदर पाए जाते हैं, क्या अरब क्या आजम, अल्लाह की कसम इनके फितने आज भी पाए जाते हैं। ये फितना वो फितना है जिसको खारजियत का फितना कहा जाता है, जिसको अकल परस्ती का फितना कहा जाता है। याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कुल्लमा तला कर्नुन कोतिया, कुल्लमा तला कर्नुन कोतिया, जब जब भी ये खारजियत का, दंगे का, फसाद का, आतंक का, मासूमों की जान लेने का, काफिर बोलकर, ऐसे ही मुशरिक बोलकर और मुख्तलिफ अंदाज से दीन इस्लाम से बाहर निकाल कर जान माल आबरू के साथ खेलने का जब जब ये फितना सर उठाएगा, उसका उस सर को कुचल दिया जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जब जब ये फितना सर उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इस बात को एक बार दो बार नहीं बयान फरमाया, एक बार दो बार नहीं 20 मरतबा आपने फरमाया। जब जब ये फितना सर उठाएगा, कुचला जाएगा, फिर उठेगा, फिर कुचला जाएगा, फिर कुचला जाएगा। 20 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खारजियत का फितना उठेगा। इस खारजियत के फितने में खास बात क्या है मेरे भाइयों? इस्लाम मुसलमान को, इस्लाम के नाम लेवाओं को, मुसलमानों को काफिर करार देकर उनकी जान माल इज्जत व आबरू को हलाल समझने की बात करना, मुसलमानों के हुक्मरानों के खिलाफ दंगे की बात करना, ऐसे ही वतने अजीज हिंदुस्तान के अंदर कशीदगी का माहौल पैदा करना, जज्बातियत का माहौल पैदा करना, इमोशन का माहौल पैदा करना, उकसाना, भड़काना। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी का फरमान हमेशा अमन की दावत देता है। अहलुल हदीस का मनहज, सलफियत का मनहज हमेशा जमाते अहले हदीस का प्लेटफॉर्म, जमाते अहले हदीस का स्टेज, जमाते अहले हदीस के उलमा, जमाते अहले हदीस की किताबें और ऐसे ही तमाम तर सरगर्मियां इस बात का हमेशा ऐलान करती हैं, दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम दहशतगर्दी से बड़ी है, दहशतगर्दी इस्लाम से बड़ी है। किसी की जान माल आबरू पर हरगिज हमला नहीं किया जा सकता, हाथ नहीं डाला जा सकता। ये इस्लाम का अटल फैसला है। लेकिन अफसोस इन खारजियत मिजाज लोगों ने इस्लाम के इस पैगाम को तहोबाला कर दिया। इन अफकार और नजरियात के हामिलीन के जरिए से यह फितना दुनिया के अंदर फैला। हमने आपके सामने सईद कुतुब का नाम लिया, ऐसे ही और बहुत सारे नाम हैं जिनके जरिए से दुनिया के चप्पे चप्पे में यह फितना फैला कि लोगों को उकसा कर, भड़का कर, क्या आवाम, क्या इस्लामी समाज, क्या इस्लामी मुआशरा, क्या मुसलमानों के हुक्मरान और क्या मासूमीन, इन सब की जानो माल और उनकी आबरू पर हमला करने को हल्का बना करके पेश करना, यह रवैया बहुत सारे लोगों की जबान पर, कलम पर देखा गया है। अफसोस मेरे भाइयों, कभी बहकावे में ना आना, कभी भड़कावे में नहीं आना, कभी उकसाने में मुब्तला नहीं होना। याद रखना यह खतरनाक कदम है, यह अकल परस्ती का नतीजा है, यह खारजियत का नतीजा है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा डराया, आगाह किया, चौकन्ना किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे ही बहुत सारे फितने हैं।